اور یہ جو ٹی شرٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہے کشمیر پریمیئر لیگ کی ٹی شرٹس اور کھیلو آزادی سے، کھیلو آزادی سے، اور اس پہ ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہے. یہ ذرا ہلکا نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن یہ کہ ہم اس ہمیں بہت جلدی تھی ٹی شرٹس لینے کی تو اس لیے ہم نے ٹیمپرری پرنٹڈ ٹی شرٹس لے لی. اب یہ اصل بنیں گی تو ہمیں آئیں گی ہمارے. بالکل. تو جو کشمیر پریمیئر لیگ ہے اس کا سلوگن ہے کھیلو آزادی سے. اپریل سے یہ شروع ہوگی اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے مایہ ناز ترین کرکٹر بوم بوم شاہد آفریدی ہیں یہ لیگ کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں. صدر آزاد کشمیر جو ہیں سردار مسعود خان صاحب وہ لیگ کے پیٹرن ان چیف ہوں گے اور اپریل سے یہ شروع ہوگی، اپریل 2021 سے. اچھا اس سارے انیشیٹو کو یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ سارے انیشیٹو کو لیڈ کریں گے جی پرائم منسٹر آزاد کشمیر. جی بالکل، پرائم منسٹر آزاد کشمیر اس کو لیڈ کریں گے. 6 ٹیمیں اس میں حصہ لیں گی. مظفر آباد ٹائیگرز، میرپور رائلز، کوٹلی پینتھرز، راولا کوٹ ہاکس، باغ سٹیلینز اور اوورسیز وارئرز یہ شامل ہیں. اب کشمیر کے نوجوانوں کے کیا جذبات ہیں اس پریمیئر لیگ کے ذریعے، مسئلہ کشمیر کو دنیا کے ذریعے کیسے اجاگر کیا جائے گا اور کتنی مدد ملے گی، اور یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ اصل سوال یہ ہے کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا. بالکل. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج بڑی خاص شخصیات موجود ہیں. سب سے پہلے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، جس شخصیت نے یہ انیشیٹو لیا، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جناب شہریار آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شہریار بھائی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. اور شہریار صاحب کے ساتھ موجود ہیں کے پی ایل کے صدر، کشمیر پریمیئر لیگ کے صدر عارف ملک صاحب، اور جو سی ای او ہیں کے پی ایل چودھری شہزاد اختر صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے علاوہ خاص طور پر ہمیں جوائن کریں گے آزاد کشمیر کے صدر مملکت صدر جناب سردار مسعود خان صاحب اور لالا یعنی کہ شاہد آفریدی صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. تو ان سے بھی ہم آپ کی بات کرائیں گے. پہلے شہریار بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں. یہ آئیڈیا ظاہر ہے آپ کا ہی آئیڈیا ہے، لیکن اس آئیڈیا کا انیشیٹو آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کام کیا، ایفیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. ویس جب آپ نیک نیتی سے محنت کرتے ہیں اور کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہیں تو چیزیں خود بخود جڑتی جاتی ہیں. ہم نے کشمیر کمیٹی کو فعال بنانے کے لیے ہر اس ایریا کو کور کرنا تھا جس کے تھرو ہم گلوبل کی میسیجنگ کریں اور یوتھ کے علاوہ دنیا کے تمام سوچ اور فکر کے لوگوں کو اپنی سوچ کے ساتھ جوڑ دیں. تو کلچرل فرنٹ کا انیشیٹو ہم نے لیا. اسی طرح ڈیجیٹل، لا فیئر، یوتھ امبیسڈر، ایک بہت بڑی لسٹ ہے. کلچرل فرنٹ میں ہم نے کیا کیا کہ صرف پرفارمنگ آرٹ کے لوگ ہی نہیں، سپورٹس، فٹرنیٹی اینڈ دین سپورٹس آپ کو یونائٹ کرتی ہے، آپ کو جوڑتی ہے. تو آپ نے جس طرح دیکھا کہ یہ پریمیئر لیگز چل رہی ہیں، اسی طرح فٹ بال کی اور ہر سپورٹ کی. تو ہم نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے 10 ڈسٹرکٹس آف آزاد کشمیر، کشمیری ڈائسپورا ایز اے ہول، اور پھر کشمیر سے جڑی ہوئی تمام بھی جو سوچ اور فکر جو لوگ ہیں، اللیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو، جموں کشمیر، کوئی بھی ہو، ان سب کے یوتھ کو میسیج دینا کہ آپ کی گلوبل کے فورمز پہ خاص کر ناؤ وی آر برنگنگ کشمیر آن دا میپ آف دا گلوبل سپورٹس. دیٹ از دا سول آبجیکٹو. اور کے جو ہے اب بز ورڈ بن گیا ہے. سو ہم نے اس انیشیٹو کے لیے سوچا تھا اینڈ ان دا مین وائل اے گروپ آف دیز جینٹلمین واکڈ ان ٹو مائی آفس ون ڈے کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. پہلے میسیج آیا جی ایک کرکٹ ایونٹ کرانا چاہتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ روٹین ایونٹ ہوگا، لیکن اصل میں کریڈٹ ان دونوں صاحبان صاحب کو جاتا ہے، ملک صاحب اور شہزاد صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے. اور انہوں نے 2 سے 3 سال انویسٹ کیے اس انیشیٹو پہ. رب نے اس کا جوڑنا ہمارے ساتھ لکھا تھا. اینڈ لیٹ می ایشور یو 10 اضلاع آزاد کشمیر کی کشمیری ڈائسپورا، کشمیر کو گلوبل ریکگنیشن اب ایسی ملے گی کہ جتنے بھی پروفیشنل کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملے گا. they'll be able to compete. کون اس کے اندر شامل ہیں آپ کے ساتھ جو کرکٹرز شامل ہیں؟ اظہر محمود صاحب، یہ تو باقی آپ یہ اظہر محمود صاحب چیف کوچ ہیں ان کے. زبردست. شاہد آفریدی بھائی جو ہیں وہ ان کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں. اور ابھی انہوں نے بہت ساری چیزیں چھپا کی رکھی ہوئی ہیں. اچھا وقت کے ساتھ ساتھ ہاں کی سٹیک ہولڈرز آئیں گے، بٹ سول آبجیکٹو کشمیر کو ہم نے ہر اس فورم کا حصہ بنانا ہے جہاں پہ کشمیر کی آواز، اس کے کلچر، اس کے نارمز، اس کے ویلیوز، اس کی ریزیلینس، اینڈ سب سے بڑھ کر کشمیر کی جو بھی اس وقت حالت زار ہے، وہ جب آپ جڑتے ہیں نا،
जब आप फर्क पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन थी, सुपर लीग पाकिस्तान PSL आई, लोगों ने विजिट किया और यकीन करें वो आपके एम्बेसडर्स बने। कश्मीर के लिए अब स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी एम्बेसडर्स बनेंगे इंशाल्लाह। तो अख्तर साहब, शहजाद अख्तर साहब, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें वो ये है कि डायस्पोरा की टीम अलग है और वो भी इनके साथ आके खेलेगी। उसकी वजह क्या यही है कि वो बाहर से आएंगे, यहाँ खेल के जाकर वहाँ पर एम्बेसडर्स बनेंगे, या उसके अलावा भी कोई रीज़न है उनको रखने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट साहब का, आज़ाद कश्मीर प्राइम मिनिस्टर का, रियल जम शहरयार खान अफरीदी साहब का, जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया वो अपनी मिसाल आप है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो उन्होंने बताई है कि पाकिस्तान और कश्मीर जो एक लेवल क्रिकेट का लेके जा रहे हैं, वो जो बेसिक चीज़ है इसकी, कश्मीर का जो मैप है, स्पोर्ट्स मैप, वो दुनिया के मैप पे आ गया। कश्मीर को अब पहचाना जाएगा कि स्पोर्ट्स की निस्बत से ओवरसीज़ टीम और इस तरह बाकी टीमें जो भी हैं, ये वो चीज़ें हैं जो एक क्रिकेट लीग को हम लेके चल रहे हैं। तो बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रिकेट की चीज़ें थी उसको फॉलो करें। सही है। और क्रिकेट तो वैसे भी एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स है जो पूरी कौम को जोड़ देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अब इसमें जो टीम्स हैं शामिल हुई हैं, वो टीम्स जो हैं वो इस वक्त आएंगी, मैदान में उतरेंगी और उसमें एक ओवरसीज़ टीम होगी, बाकी 5 अजला की टीमें होंगी। इंटरनेशनल खिलाड़ियों का एक तो ये बताइए कि उनकी आमद का कितना इम्कान है, दूसरा ये कि मजीद जो टीम्स आएंगी वो किस तरीके से आएंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि लीग्स जो होती हैं उसके अंदर ड्राफ्टिंग होती है, प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है, तो वो प्लेयर्स जो हैं वो किस तरीके से सिलेक्ट होंगे इसके? वैसे इसमें एक इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली, बिकॉज जैसे शहरयार भाई ने कहा कि वी आर वर्किंग ऑन दिस लीग फॉर लास्ट 3 years, लीगैलिटीज़ बहुत इन्वॉल्व होती हैं, फिर उसके बाद आपके जो प्लेयर एक्विजिशंस हैं, फिर उसके बाद आपके एक मीडिया PR पुश होती है, मतलब वो एक तैयारी होती है कि वो विद इन डेज़ नहीं होती है ऑफ कोर्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे प्लेयर्स पूल की आप बात करें, तो प्लेयर पूल्स में फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर्स। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर कमेंटेटर्स, हम वी आर गोइंग टू इन्वाइट इंटरनेशनल कमेंटेटर्स। फिर आपके पास एग्जैक्टली वही सिनेरियो नज़र आएगा कि प्री मैच, पोस्ट मैच, वी आर गोइंग ग्लोबल माशाल्लाह। तो ये वो सारे सेगमेंट्स हैं जो इसको एम्पावर करेंगे इस लीग को। शहरयार भाई ने जैसे एक खेलेंगे, आई बिलीव कि नहीं, हमारी पूरी ख्वाहिश है कि जो खेलें हमारे साथ वैसे, लेकिन जो बैक द पेलिंग खेल रहे हैं वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। फिजिकल फिटनेस वापस आ रही है। शहरयार भाई एक आधी बॉल जो है ना वो खेल लेंगे। एनीवेज, जहाँ तक प्लेयर की बात है तो प्लेयर्स पाकिस्तान से हम सारे एक्वायर कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट सीज़न, और सेकंड सीज़न में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स भी लेके आएंगे इसमें और इंटरनेशनल फ्लेवर्स भी लेके आएंगे। और थैंक्स टू आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, दे आर गोइंग टू अपग्रेड मुजफ्फराबाद स्टेडियम, जिसके अंदर आपको फ्लड लाइट्स नज़र आएंगी। एंड आई टेल यू कि दैट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज उसकी जो एक वैली की एक लुक है, जब चौका छक्का लगेगा, यू जस्ट इमेजिन कि क्या सिनेरियो क्रिएट होगा। बिल्कुल। मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो जब ये चीज़ देखेंगे तो उन पर क्या असर होगा, इंडिया जब देखेगा तो उन पर क्या असर होगा, ये भी बताइएगा। फिर हमें प्रेसिडेंट साहब ने भी ज्वाइन करना है। सोशल मीडिया पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक बज़ जो क्रिएट हुआ है, और बिलीव यू मी, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं कश्मीरी निजात अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो US में है, चाहे वो यूरोप में है, जहाँ पे भी हैं, अनप्रेसिडेंटेड उनका फीडबैक है। नंबर 1। नंबर 2, देखें जिस तरह कश्मीर के कल्चर को, उनके टूरिज़म को, उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, सोशल फैब्रिक को हिंदुस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सफोकेट किया हुआ है। उस चीज़ को सामने रख के देखें, आपकी ज़ात और आपकी ज़ात से जुड़ी हुई जो चीज़ है, हर शख्स दुनिया में उसको, मेल फीमेल उसको वैल्यू करते हैं। तो ये तो उनकी शनाख्त है। ये कश्मीर प्रीमियर लीग, इट इज़ बेसिकली द वॉइस ऑफ द एंटायर कश्मीरीज, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे आज़ाद कश्मीर में हो, चाहे पूरी दुनिया में हो, जहाँ जहाँ पे कश्मीर। एंड बिलीव यू मी, ये मुझे इस चीज़ की खुशी इसलिए हो रही है कि द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कश्मीर कमेटी एंड ऑफ एनी स्टेट जो इंस्टीट्यूशन है एक ही है। वो क्या है कि यूथ को एंगेज करना, यूथ को पॉजिटिव एनर्जी देना, उनको ये प्लेटफॉर्म देना जिसमें वो एक्सेल करें। और अब कश्मीर के जवान ग्लोबली compete करेंगे, they'll become the voice of their people, and उनकी पॉजिटिव एनर्जी से ग्लोबली दुनिया के नक्शे पे कश्मीर की जो आवाज़ अब बनेगी
اس کو روکنا انشاءاللہ بہت مشکل ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمیں جوائن کیا ہے صدر آزاد کشمیر جناب مسعود خان صاحب نے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ وقت نکالنے کا, ان کو کنگریچولیشنز فرسٹ آف آل کہ آپ بھی اس انیشیٹو کا حصہ ہیں اور ظاہر ہے آپ اس کو لیڈ فرام دا فرنٹ کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ کشمیر پریمیئر لیگ کا انعقاد ہو رہا ہے, کیا کہیں گے اس پر, اور دوسری بات یہ کہ آپ کے جذبات کیا ہیں اور کشمیر کے نوجوانوں کی اس لیگ کے حوالے سے کیا جذبات ہیں؟ کشمیر پریمیئر لیگ کے افتتاح کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں. پورے جموں و کشمیر کے لوگ خوش ہیں, پاکستان کے لوگ خوش ہیں, اس لیے کہ اس لیگ کے افتتاح کی وجہ سے پاکستان اور جموں و کشمیر کے رشتے اور بھی مضبوط ہوں گے. اور دوسرے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیگ جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے جس سے آپ آزاد کشمیر کے ہونہار کرکٹرز کو مین سٹریم میں شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پاکستان میں جو میچز ہوتے ہیں ان میں شامل کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک سے ایک ہونہار کرکٹر موجود ہے, وہاں یہ کرکٹ کھیلنے کا ایک جنون ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک پلیٹ فارم پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان ارشاد جو ہے پہلے پاکستان سپر لیگ میں کھیل چکا ہے, آسٹریلیا میں کھیل چکا ہے اور اپنا لوہا منوا چکا ہے, لیکن پورے آزاد کشمیر میں اس کے طول و عرض میں کئی سلمان ارشاد موجود ہیں جو اپنا جوہر دکھا سکتے ہیں. پھر ہماری یہ کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو بین الاقوامی کرکٹرز ہیں یا پاکستانی کرکٹرز ہیں جو مایہ ناز اور مانے ہوئے پاکستانی کرکٹرز ہیں وہ کشمیری کرکٹرز کے ساتھ میچ کھیلیں, اور جو بین الاقوامی اور قومی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں سرمایہ کاری بھی کریں. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ کشمیر کا حسن مثالی ہے, مسحور کن ہے. وہاں جو اسٹیڈیم بھی بنے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. مظفر آباد کا اسٹیڈیم دیکھ لیجئے, میرپور کا دیکھ لیجئے, راولہ کوٹ کا, باغ میں بھی کوٹلی. تو جب وہاں میچز کھیلے جائیں گے تو ان کی فوٹیج ہی بہت ہی خوبصورت ہوگی اور دل پذیر ہوگی. پھر یہ ہے کہ ہم اس لیے بھی خوش ہیں کہ جموں اور کشمیر کے لوگ جو اتنے عرصے سے جد و جہد کر رہے ہیں تو وہ دنیا کے سامنے ایک بہت ہی مثبت خوبصورت شبیہ پیش کر سکیں گے, اور جو پاکستان کی اور جموں و کشمیر کی سافٹ پاور جو ہے اسے پروجیکٹ کر سکیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, سب کو معلوم ہے کہ جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم فیئر پلے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ اصولوں کا خیال رکھتے ہیں, اور جو کشمیر پریمیئر لیگ ہے اس کا ماٹو ہے کھیلو آزادی سے, کھیلو آزادی سے, اور میں سمجھتا ہوں کھیلو عزت و احترام کے ساتھ. تو اس لیگ کے افتتاح کی وجہ سے ہم بہت خوش ہیں. سر جو ٹیمز اس پوری کرکٹ لیگ میں اس وقت شامل ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے کہ ان میں آپ کو کتنا جوش نظر آ رہا ہے, خاص طور پر اوورسیز والی ٹیم کے حوالے سے. ٹیموں کے بھی زبردست نام رکھے گئے ہیں. مظفر آباد ٹائیگرز, میرپور لائنز, راولہ کوٹ ہاکس, باغ سٹیلینز, کوٹلی پینتھرز اور اوورسیز وارریئرز. ایک بہت بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ ایک ٹیم جو ہے جو ملک سے باہر کشمیری اور پاکستانی ہیں ان کی بھی جو ہے ایک ٹیم رکھی گئی ہے. اس طریقے سے جو ہے کشمیری کھلاڑی جو ہے وہ باہر کے لوگوں سے جو ان کے اپنے ہی ہم وطن ہیں جو باہر آباد ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کھیل کو فروغ دے سکیں گے. اور مجھے امید ہے کہ بالآخر سب ڈسٹرکٹس میں جو 10 کی 10 ڈسٹرکٹس ہیں آزاد کشمیر اس میں جو ہے ٹیمیں بنیں گی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گی اور وہ پاکستان کے مرکزی دھارے میں شامل ہو جائیں. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی ٹیم قوم تو ویسے کرکٹ کی بڑی شوقین ہے, آپ کو کتنا شوق ہے کرکٹ کھیلنے اور دیکھنے کا؟ مجھے کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے اور اس وجہ سے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس نے بہت اعلیٰ ترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ مجھ سے زیادہ جو نوجوان ہیں آزاد کشمیر کے وہ دیوانے ہیں کرکٹ کے, اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوں یا قصبے ہوں یا شہر ہوں, جہاں گلی کوچے میں آپ چلے جائیں, جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے, وہ اسکول کالج میں تعلیم پا رہے ہوں یا بچے ویسے جو ہے شام کے وقت جو ہے کوئی نہ کوئی کرکٹ گراؤنڈ بنا لیتے ہیں اور وہاں کھیلتے ہیں. اور اگرچہ ان کو کوئی اس قسم کی تربیت کے مواقع نہیں ہیں لیکن وہ اپنے شوق سے کھیلتے ہیں. یہ ایک قومی کھیل ہے, یہ جموں اور کشمیر کا بھی ایک قومی کھیل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر پریمیئر لیگ ہے اس کی وجہ سے نئے مواقع ان تمام لوگوں کے لیے پیدا ہوں گے اور جو کوشش ہو رہی ہے اس کھیل کو فروغ دینے کے لیے وہ زیادہ منظم ہو جائے گی. بالکل سر. اچھا سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو اقدامات اس حکومت کی طرف سے آزاد کشمیر کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کی تحریک کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
देखिए, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो इक़दामात लिए हैं, जुल्म पहले भी होता रहा है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने इक़दामात किए हैं उसकी वजह से कश्मीर पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जो है, मकबूजा जम्मू कश्मीर महसूर हो गया है। लोगों की आज़ादियाँ सल्ब कर दी गई हैं, तो वहाँ कहीं भी कोई रोशनी की किरण नहीं आती। यही ख़बरें आती हैं कि जी आज नौजवान कत्ल हो गए, यही ख़बरें आती हैं कि जी बाहर से लोगों को लाके आबाद किया जा रहा है। लिहाजा लोग अपने आप को महबूस महसूस करते हैं, ऐसे जैसे वो किसी कैद खाने में हों। और इधर आज़ाद कश्मीर के नौजवान तड़प रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग जो कि क्या किया जाए कश्मीरी नौजवानों के लिए। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान भी कई बरसों से, कई अशरों से जो है क्रिकेट खेलते रहे हैं, और यानी यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो हिंदुस्तान में जाने पहचाने हैं, और वहाँ के खिलाड़ी जो है उनको यहाँ लोग जानते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि इससे ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग है, इसके ज़रिए हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो कश्मीरी हैं और अहले पाकिस्तान हैं वो अमन और राशती और सलामती और खैर सगाली के जज्बात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसमें तसादुम ख़त्म हो। जो कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में खूनरेज़ी हो रही है, जो कत्लेआम हो रहा है या नस्ल कुशी हो रही है, उस रास्ते को हिंदुस्तान तर्क करे और क्रिकेट खेले। क्रिकेट जो है वो फेयर प्ले, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो फेयर प्ले है, वो इंसाफ की बात है, वो आदाब की बात है, वो इंसानी हुकूक के एहतराम की बात है। और फिर ये भी मैं कहूँ कि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इससे पाकिस्तान का और अहले जम्मू कश्मीर का सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट पावर जो है दुनिया को दिखाने का एक नादर मौका है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरदार मसूद खान। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। शहरयार साहब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी ज़ाहिर है ये खबर तो पहुंची गई होगी, उनका क्या रद्द अमल था कि क्रिकेट के थ्रू अब कश्मीर का कॉज आप इस तरह उजागर कर रहे हैं, वो क्या कह रहे थे इस पर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उस वक्त से लेकर अब तक थ्रू आउट हर चीज़, हर इनिशिएटिव उनका है, वही सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ये आपको बताना चाहूँ कि जितनी कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कश्मीर के हवाले से है, वो शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी कमिटमेंट देखी हो। और कल्चरल फ्रंट स्पोर्ट्स आइकॉन है मेरे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हीं के विज़न के मुताबिक कि जब आप यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करोगे, जब आप ग्लोबल फोरम्स पे और स्पोर्ट्स के वो आइकॉन्स या वो सेलिब्रिटीज़ जो कि अपने मुल्कों में ग्लोबली वैल्यू की जाते हैं, जब वो आपके लिए बात करेंगे उसका इफ़ेक्ट कुछ और होगा। सो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज़ इन दी एंड कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर इसको लीड करेंगे। मैंने पिछले काफ़ी हफ्ते 10 दिन में कोशिश की उनको रीच आउट करने की, बदकिस्मती से मेरी मुलाकात बात नहीं हो सकी, बट इंशाल्लाह वेरी सून हम उनको कर्टिसी कॉल देंगे। और जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इन कश्मीर कमेटी इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू PTI, इसमें पीपल्स पार्टी, इसमें नून, इसमें JUI, इसमें जमात इस्लामी, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो नेशनल असम्बली और सेनेट में, उन सबका नाम नहीं दी, सबका पाकिस्तान और कश्मीर के लिए सब यूनाइटेड हैं। हमारे ज़ाती इख्तिलाफात अपनी जगह, कश्मीर के लिए पूरी कौम यूनाइटेड है। आखिरी चीज़ जो मैं इस हवाले से जल्दी से बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आपके तवस्सुत से इसको अभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी इसको वैल्यू करना है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। बिल्कुल करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां हैं और वो मीडिया के हवाले से पूरी करेंगे। हाँ, जो कोशिशें हैं आपकी उसके अंदर जाहिर है एक लोगों को भी जोश नज़र आ रहा है, जज्बा नज़र आ रहा है। और चूँकि शाहिद अफरीदी साहब ने आपको ज्वाइन किया हुआ है, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत ना करें। शाहिद अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लाला हमारे पाकिस्तान के ज़बरदस्त तरीन प्लेयर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए, ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, ख़ास तौर पे वहाँ के बच्चों के लिए जिन्हें एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने के लिए। नेशनल प्लेयर्स के साथ, बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे और वहाँ पे क्रिकेट का क्रेज बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी मैनेजमेंट को और शहरयार अफरीदी साहब की एफर्ट को,
प्रेसिडेंट साहब आए थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया इस चीज को। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इसको मैं फ्यूचर में एक देखना चाहता हूं कि फ्यूचर में एक ऐसा टैलेंट जहां पे क्रिकेट का और इवन के फुटबॉल का बहुत ज्यादा शौक है वहां पे बच्चों को, तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। आई होप कि इससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। शाहिद साहब, ये बताइए कि इस लीग से कश्मीर के हवाले से आपके ख्याल में दुनिया में किस किस्म का पैगाम जाएगा, इंटरनेशनली लोग किस तरह से इसको देखेंगे? और ये भी बताइएगा कि लीग की आमद, मतलब लीग जब होगी, शुरुआत होगी, तो उसमें बाहर के इंटरनेशनल खिलाड़ियों की आमद का कितना इम्कान आपको लगता है? देखिए जी, इनिशिएटिव लिया गया है और मैं ये समझता हूं कि जब वहां पे स्टार्स जाएंगे, सेलिब्रिटीज जाएंगे, इस लीग को सपोर्ट करेंगे, खेलेंगे उन लड़कों के साथ, तो ओवरऑल बड़ा जबरदस्त, ग्लोबली बड़ा जबरदस्त मैसेज जाएगा वहां की तरफ से कि वहां के बच्चों को कितना शौक है क्रिकेट का, पुरअमन लोग हैं, बड़े प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक वक्त आएगा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बड़े नाम है, वो भी आके खेलेंगे। पहला साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सबकी दुआ है, मेरी दुआ है खास तौर पर कि अल्लाह ताला इस पहला साल जो है KPL का वो कामयाब। अच्छा, ये भी बताइएगा शाहिद भाई कि जो मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक है और पाकिस्तानी हुकूमत उसके लिए जिस तरह काम कर रही है, तो ये क्रिकेट लीग उसके लिए किस तरह मददगार साबित होगी? देखिए, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि ये एक ग्लोबली बड़ा जबरदस्त मैसेज जाना है और सबको पता है, पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है इस वक्त, वो जुल्म की इंतहा भी क्रॉस कर चुका है। तो ग्लोबली एक मैसेज लाजमी जाएगा और हमारी कोशिश है कि इस मैसेज को और फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए, बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आएंगे वो भी देखेंगे अपनी आंखों से ये सारी चीज कि वहां के लोग अमन पसंद लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितना कंट्रीब्यूट किया जा सके। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के आपस के ताल्लुकात में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी का बड़ा किरदार रहा है। अब जो हालात हैं, हम बात नहीं कर रहे, वो हमसे बात नहीं कर रहे, हमने तो फिर हमारे वजीर आजम ने ऑफर्स किए हैं मुख्तलिफ बैठने की, लेकिन वो नहीं मानते, जाहिर है उनका मकसद कुछ और है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन को कितना जो है ये इस किस्म की कोशिश जो है खासतौर पर कश्मीर प्रीमियर लीग उसमें बेहतरी ला सकती है? देखिए, मेरा जो बिलीव है एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ एथलीट, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिससे हमेशा रिलेशनशिप बेहतर पास्ट में भी रहे और अभी भी हो सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि हमेशा आपस के जो ताल्लुकात हैं, आपस में जो नेबर्स मुमालिक हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात, पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा, पाकिस्तान हुकूमत, कि हमारे बेहतर से बेहतर हैं होने चाहिए और मैं भी इस चीज पे मेरा बिलीव है कि हमारे बेहतर होने चाहिए। स्पोर्ट्स एक वाइड ऐसा जरिया है जिससे हमेशा ताल्लुकात बेहतर। क्रिकेट को मैं क्यों कहता हूं कि इसलिए कि क्रिकेट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आफ्टर मेरे ख्याल में रिलीजन है और हमारे मुल्क में भी क्रिकेट बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो क्रिकेट के जरिए से जो सियासतदान मैं समझता हूं कि वो रोल अदा नहीं कर सकते जो क्रिकेट के जरिए या क्रिकेटर्स के जरिए आपस में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तो हमेशा मैं सपोर्ट करता हूं, इस चीज को इंडोर्स करता हूं कि स्पोर्ट्स में खासतौर पर क्रिकेट कभी भी जो है वो सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शाहिद भाई, एक वक्त था कि लग रहा था कि आप सियासत में आने वाले हैं, लेकिन अब आप जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है, आपकी फाउंडेशन भी चल रही है, तो वो जो सियासत में आने का इरादा था, क्या वो आपने तर्क कर दिया या अभी है इरादा? देखिए, मेरा पहले भी सियासत में कोई ऐसा रुझान बिल्कुल नहीं था। हाँ, फॉलो करता हूँ, चीजों को देखता हूँ। मेरा अपना पाकिस्तान है, तो इसमें जो भी चीजें हो रही होती हैं, शौक होता है इंटरेस्ट लेने का और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमेशा सोचने की आदत रखी है मैंने। और कोई शौक नहीं है अभी फिलहाल, ना कोई मैंने इस तरफ फोकस हूँ। मेरा फाउंडेशन है, मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन के थ्रू आप बहुत खिदमत कर सकते हैं लोगों की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जो मेरी सेकंड इनिंग है, जो फाउंडेशन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनली शाहिद साहब, पाकिस्तानी कौम को और नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? ये जो अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हुई है, जाहिर है इस्तिफादा हासिल करेंगे, पैगाम क्या देंगे आप उनको फाइनली? बिल्कुल जी, जिस तरह कश्मीर को, वहां के लोगों को हम सपोर्ट करते रहे हैं हमेशा, मेरी रिक्वेस्ट पूरे पाकिस्तानी कौम से है कि इस लीग को भी उसी तरह ही सपोर्ट करें। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि एज ए एम्बेसडर इस लीग को मैं ऑन कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शाहिद अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैसेज दे रहे थे कि किस तरीके से कौम को चाहिए कि ये सपोर्ट करे। आप लोगों से भी हम सर फाइनल मैसेज लेंगे। पहले आरिफ साहब आप बताइए क्या मैसेज है आपका कौम के लिए इस लीग के हवाले से? मैसेज यही है कि जो शाहिद भाई ने भी बात की है, शहरियार भाई ने भी बात की है कि आप लोगों की मीडिया की हमें इसमें सपोर्ट चाहिए। माशाल्लाह वी हैड
वेरी सक्सेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ट्रेंडिंग में बहुत अच्छे उसमें हम लेवल पे आए। इसमें 2-3 क्विक चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम इस वक्त चूँकि ग्लोबली ब्रॉडकास्ट की हम बात कर रहे हैं कि वी आर गोइंग ग्लोबल। बरतानिया में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, यूएस में जब लोग लाइव एक्शन देखेंगे फ्रॉम मुजफ्फराबाद, यू जस्ट इमेजिन कि क्या फीलिंग्स होंगी उनकी। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स जो एजेके गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है, फिर ये एक्चुअली ये जब सबसे पहला इनिशिएटिव जो डिस्कस किया गया वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के साथ डिस्कस किया गया लास्ट ईयर, जब वहाँ पे हम एक पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल कर रहे थे, तो उसके साथ हमने ये डिस्कस किया। तो एजेके गवर्नमेंट भी ओन कर रही है इसको, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ओन कर रही है, एंड देन थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वी आर हैविंग द एलीट पैनल ऑफ द अंपायर्स, और एंटी करप्शन विंग भी वी आर गेटिंग इट वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई खुदा खासा किसी किस्म की कोई चीज़ ना हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और फिर दूसरा, शहरयार भाई से हमने रिक्वेस्ट भी की है, बिकॉज कश्मीर कमेटी को देख रहे हैं, और प्रेसिडेंट एजेके से भी हमने रिक्वेस्ट की है, हम एक वर्ल्ड टूर भी कर रहे हैं इसमें, टू क्रिएट द अवेयरनेस स्टार्टिंग फ्रॉम डायस्पोरा की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ज़ाहिर है डायस्पोरा टीम के लिए जो टीम है, आप हैरान होंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने कम से कम को 500 के करीब कॉल्स रिसीव की अक्रॉस द ग्लोब, दैट वी आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द फ्रेंचाइज, इसका क्या सेटअप है, किस तरह से होगा। और ऑफ कोर्स हमने इसको जो इंटरनेशनल 10 बड़ी लीग्स हैं एग्जैक्टली उसका जो स्ट्रक्चर है उसको रेप्लिकेट किया हमने, एंड इट इज ऑन द सेंट्रल पूल बेसिस, जैसे आपका पीएसएल है। तो यानी कि सिर्फ यहाँ पे डिप्लोमेसी नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और दूसरा क्रिकेट भी हो रही है। सर जी, हम तो एक स्लोगन लेके आए हैं, खेलो आज़ादी से। बिल्कुल, खेलो आज़ादी से। और ये आज़ादी और खेल जो है ये जुड़े हुए हैं वाकई। जिस तरह मकबूजा कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं, उसमें इंसान क्या खेलेगा और क्या उसकी सोच होगी जिस कदर वो कैद में है। शहरयार भाई, वैसे याद रखिए, जब आजमाइशें हों, जब इम्तिहानात हों, जब आपके हक को छीना जाए और उसमें फिर जब आप डिलीवर करते हैं, तो पूरी दुनिया आपको मानने के लिए मजबूर होती है। खेलो आज़ादी से, इसमें गिलगित आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स अली अमीन गंडापुर साहब ऑन बोर्ड हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड हैं, जुल्फी बुखारी साहब ओवरसीज़ वो ऑन बोर्ड हैं, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ऑन बोर्ड हैं, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर ऑन बोर्ड हैं, फैसल जावेद मेरे सेनेटर साहब भी इज़ ऑन बोर्ड, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ऑन बोर्ड हैं। सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि आज एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी गई है, एंड इसके रिजल्ट्स आप देखिएगा। सिर्फ मैसेज ये है कि इस वक्त आपने ग्लोबली अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो वो तमाम टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेंगे, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। बिल्कुल, दैट इज द ओनली वे टू रीच आउट टू ऑल दोज हु हैव अ डिफरेंट अप्रोच। लेट्स make a difference and together we'll definitely make a difference। इंशाल्लाह। खेलो आज़ादी से नाजरीन, ज़रूर आपने भी अपना हिस्सा डालना है और सपोर्ट करना है इस इनिशिएटिव को।